کیا ہو گیا ہم نے آپ کو دیکھا کیا اٹھا رکھا ہے تو ہم نے کیا ہے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم لوگ محمد نہیں ہو سکتے اس موقع پر مختلف الفاظ ہیں لیکن میں تم جیسا تم نے تمہارے نہیں ہوں اور لستم مثلی اور لستو کہاوتم لستو کہایتم لستو مثلکم اس قسم کے الفاظ بخاری ایسی صورت میں اگر یہ دوگلا پالیسی ہے اس بات کو مثلکم کہا جائے اور حالانکہ آپ ان کی جنت سے نہ ہو تو ہمیں آگے نازل یہ بتنا ہے کہ ابراہیم کی وہ آیت بھی کوئی کے ساتھ ہوتی ہے جو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے اور یہ حدیث بھی خود ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بخاری شریف کے اندر مسلم شریف اس کے اندر غلط طور پر موجود ہے جس کی صحت کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی صورت میں یہ دوگلا پن خود نہیں ہے کیا ہوتا ہے یا بالکل کلام الگ کر دیا گیا ہے ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکاری نہیں کہا گیا بلکہ آپ کا جو لوگوں کو جہنم سے گر رہے تھے ان کو بچا کے اللہ کی راہ پر چلانا اللہ سے واقع کرنا تھا اس منصب کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ شکاری شکار کو قابو کرتا ہے تو سرکار نے ان لوگوں کو قابو کیا ہے جو جہنم کے گڑے بگڑ رہے تھے اور یہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انی آخذ بحدودکم میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ جہنم سے پیچھے گھسیٹ رہا ہوں اس منصب کو سمجھانے کے لیے میں اپنے فاضل برادر سے یہ اجازت چاہوں گا کہ اگر یہ گستاخی ہے تو اپنے گھر کی کو خبر لے لینی چاہیے اگر آپ کو یہ گستاخی نظر آتی ہے تو میں آپ کے سامنے حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی ایک عبارت اس سلسلہ میں پیش کرنا چاہتا انہوں نے صراط مستقیم کی ایک عبارت کو کہ سب مخلوق بڑے ہوں یا چھوٹے وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے ذلیل ہے اس عبارت کی تصحیح کے لیے اس کی توجیہ کے لیے انہوں نے جو مثال ذکر فرمائی ہے کہ اگر اس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام جملہ اولیاء کرام صدیقین شہداء صالحین آ چکے مولانا صحیح ہے کیوں کمہار لوٹا مٹی کا بناوے اگر سے خوبصورت پسندیدہ ہو اس کے دیال پہ رکھے مگر توڑنے کا مختار ہے اللہ کے مقابل کمہار کو ذکر کیا ہے اور بڑی مخلوق انبیاء و رسول کے مقابل اولیاء صدیقین کے مقابل شہداء و صالحین کے مقابل لوٹے کو ذکر فرمایا ہے اگر اس عبارت میں آپ کو گستاخی نہیں نظر آتی ہے اس عبارت میں کیوں نظر آئی ہے اگر کوئی فتویٰ لگاتے ہو کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو پھر دونوں کو ایک سفتے رکھیے گا اور دونوں پہ وہی فتویٰ لگائیے گا اسلام ایک ہے شخصیات کی وجہ تو بدل نہیں سکتا ہے کہ فلاں وہی بات کہے تو اسلام بن جائے غیر کہے تو کفر بن جائے یا گستاخی بن جائے تو ایک ہی سب میں ان کو رکھتے ہوئے ذرا فتویٰ لگا کے دیکھیں کہ پھر کیا نتیجہ آپ کے مسلک پر کیا کرتا یہ تو ہے فتاوی رشیدیہ اور صفحہ 45 آئیے اور دوسری تواریخ چلاتا ہے اس کے صفحہ 161 ہدایت 176 ہدایت نمبر 176 کمہار لوٹا مٹی کا بنا عبارت یہ ہے سوال کی کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ہو خدا کی ٹائم کے آگے یہ ہے عبارت اس عبارت کا مضمون کیا ہے مطلب کیا ہے مولانا علیہ رحمت نے کیا مناظر دیا ہے اس عبارت پر تعالیٰ کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے جو سب مخلوق کا اگر کسی درجہ کی ہو اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی کمہار لوٹا مٹی کا بناوے اگرچہ خوبصورت پسندیدہ ہو اس پہ دیال پہ رکھے مگر توڑنے کا مختار ہے اور کوئی مناسبت اسی وجہ سے لوٹے کو کمہار کے پاس نہیں ہوتی حق تعالیٰ کی سات پار جو خالق محض قدرت سے ہے اس کے ساتھ کیا نسبت و درجہ کسی خلق کا ہو سکتا کافی ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آئیے میں دوسری بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے ارواح طلبہ اور مولانا اشرف علی طالب اس کے جمع فرمانے والے ہیں اس کی آیت نمبر 156 یہ ہے کہ حضرت حاجی طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میلونی سے میلونی کی حدیث اور آپ کے موقع پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
शादी हुई है, आप वहां पुरापत हुए तो आपको जरा नंगा तो तारी था, तो आपने साथ को मैं दम मिलूंगी इसकी वजह बयान करते हुए कि कहा जिब्रील का मकाम, कहा सय्यदुल कुल का मकाम। तो जिब्रील को देखने के आप पे गप्पी थी क्यों तारी हुई, कैसे हो सकता है, इसकी वजाहत करते हुए करवाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के आईना में अपनी सूरत को देखा, और जिब्रील की सूरत के नहीं बल्कि अपनी सूरत को उस आईना में देखकर जब वो हकीकत मोहम्मदिया अचानक आप पे मुंतशिर हुई तो आप पे ये तारीफ हुई। इसकी मिसाल देते हुए आप फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यकायक अपनी हकीकत का तहम्मुल नहीं फरमा सके जो जिब्रील को देखकर आप पर मुंतशिर हुई, और ये कायदा है कि गैर जिन्स में रहकर अपनी हकीकत महजूब रहती है और हम जिन्स को देखकर मुंतशिर हो जाती है। यहाँ ये लफ्ज़ काबिल गौर है कि गैर जिन्स में रहकर वही ये राज का पागल मुनाजिर का कि कुफार की जीवन बात नहीं कि आपने धोखा दिया था, और हाजी साहब यही इरशाद फरमा रहे हैं कि गैर जिन्स में रहकर अपनी हकीकत महजूब रहती है और हम जिन्स को देखकर हकीकत मुंतशिर हो जाती है। जैसे मजबूर है कि किसी शख्स ने शेर का बच्चा पाल लिया था, उसे अपनी बकरियों में छोड़ रखा था, शेर को उन बकरियों में रहकर अपनी हकीकत की खबर न थी, वो मिसल बकरियों का यकीन बना हुआ था। इत्तेफाक से एक दिन पानी पीते हुए उसे अपना चेहरा देख लिया, अपनी सजा को बसालत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई, और फिर जब बकरियों को देखा तो समझा कि मैं बकरी नहीं हूँ, कुछ और ही हूँ। ये हकीकत पाकर जो बकरियों में गया तो सब बकरियों में गोल बदल मच गया, किसी को फाड़ डाला, किसी को खा गया, किसी को मारा। तो ये तमसील शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के अंदर पाला गया हो। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो इंसानों में गुजरा, बिरादरी में गुजरा, उससे मुतल्लिक ये इरशाद करवा रहे हैं कि शेर का बच्चा जो बकरियों में पला है उसे हकीकत की समझ नहीं थी, जो भी कानून के ज्ञान वो हकीकत समझ आ गई। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र उस शेर के और मिस्र काबिल सलाम तांगीन तेरे काबिल मुखातिब भी मेरे आज का जवाब बल उसके बजाय वो इबारत पेश करना शुरू करवा दी कि जिन इबारत को वो अपने मुस्तकिल से मौजू में पेश करवाते थे। दाम मुझे इस वक्त में नहीं जाना है कि उन्होंने दूसरी इबारत को करवा दी। मैं इतना बदलाना चाहता हूँ, मेरा इतराज ये था और इबारत को दोबारा पढ़ता हूँ कि इबारत में अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोगरी पॉलिसी माज़ अल्लाह ताबुक होती है या नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपार कटा को बागाना ताबुक होता है या नहीं, वो दोबारा करता हूँ ताकि बार और क्लियर हो जाए। इस आयत में कुफार से खिताब है, क्योंकि हर चीज अपनी बहर बिना करती है। लिहाजा फरमाया गया तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दिल से हूँ, यानी बशर शिकारी जानवरों की सी आवाज निकाल कर शिकार करता है। ऐसे कुफार को अपनी तरफ मायल करना मकसूद है। अगर मुसल्ली भी कुफार में से ही है तो उनसे भी ये खिताब हो सकता है। हम मुसलमानों से फरमाया गया मेरे बात बड़े एहतराम बुजुर्ग हो, मैंने अर्ज किया था कुफार से कहा गया बातों में सुनो, मुसलमानों से कहा गया अजब में। मेरे फाजिल मुखातिब ने जवाब कहा है कि ये तो हदीस में आता है कि आपने ये तब ये कहा है तब ये कहा, तो ये माना नहीं है। मेरे फाजिल मुखातिब जैसे हदीस में किस्म के अल्फाज आएंगे जैसे आज का बंद है कि उनकी ताबीर करके कुरान और सुन्नत को मुताबिक किया जाए, ऐसे मैं भी उन अहादीस की ताबीरात का पाबंद हूँ। ये इसका जवाब नहीं, जवाब ये होना चाहते था कि इस इबारत में आप को धोखेबाज अब किया गया है जमीन, आपकी जो जुबानें बतलाई गई है जमीन, और वो बात है कि कुफार से आपने ये कहा और मुसलमानों से ये कहा, और मुफ्ती साहब यही फरमाते हैं कि जनाब बंदी साहबान अगर तुम कुफार हो तो तुमसे भी खिताब हो सकता है, और तुम्हें भी फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी मुतबशर हूँ। जैसे शिकार पकड़ने के लिए शिकार को उसके पास धोखा करता है, बात को सिर्फ इतनी है कि इसमें धोखा है नहीं है। बाकी यही बात ये कि हादीस में आपने जो पुलिस भी फरमाया, आपने कुल नमाना बशर मिसबकों के अल्फाज भी फरमाए, तो मैं पाल मुखातिब से मुतालबा करूंगा कि आप पूरे हदीस में सही एक हदीस के खिलाफ
کبھی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں تمہاری ملک پرس میں اگر یہ مل جائے تو باقی پھر بات بنتی ہے کہ قرآن میں آئے نمانا باتوں مصرکم حدیث میں آ گیا تمہاری میتر بچت نہیں ہوں. اگر آپ نے کسی موقع پر کسی خواب کی نفی کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں, جیسے مثلاً ایک بڑا عالم اپنے چھوٹے شاگرد کو کہتا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہے, یعنی ایک کتاب کی عبارت اس نے غلط پڑھی اور کو استاد کہتا ہے کہ اچھا اب تجھے لیے روز کر گیا کہ تو اس طرح باتیں پڑھنے کے لیے اور میدان میں آنے کے لیے تیار ہے, تو وہ جیسا نہیں ہے, یہ میرا عوام ہے. اب یہ تگے مانا نہیں ہے کہ وہ شاگرد کہتے ہیں اچھا استاد جی آپ تو پھر انسان ہے, میں تو انسان ہوں نہیں. بدلانے استاد اس کو بدلانا نہیں چاہتا ہے کہ یہ مقام یہ مقام اور کتب بیان اور عبادت کی تصویر میرا مقام ہے, تو ابھی مقام پہ نہیں پہنچا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایدوں کو مثلی بہما فرمایا, جہاں کہا تھا مسلسل روزے رکھنے لگے, آپ نے فرمایا ایدوں کو مثلی, تو میرے جیسی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تم مسلسل روزے رکھو. مجھے اللہ کی طاقت دلاتا ہے, تمہیں یہ مقام حاصل نہیں. بشریت مراد نہیں تھی, بشریت کی نبی مراد نہیں تھی, بشریت کی عزم مماثلت مراد نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا پادر مخاطب سے کہ پورے وقیہ حدیث میں آپ کو یہ پہلی صحیح اور موت بات پنت سے تاثیر لائیں جس میں آپ نے فرمایا میں تم جیسا بشر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ان قاعدہ امت نظر رکھیے کہ اگر کوئی ایسی روایت پر کیجیے مل جائے تو وہ خبریں باہر ہو کر قرآن کے سرکار جائیں. قرآن کہتا ہے مانا باتوں میں لوگوں اگر حدیث میں آ جائے تو وہ کپڑے باہر ہوتے ہوئے نہ پتی کے مقابلے میں تو پیڑ ہی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ مطلب جو آپ نے استعمال کی, یہ الفاظ استعمال کیے, یہ روز بانی نے استعمال کی, یہ تو کوئی داغیہ ہونا چاہتا تھا. داغیہ کیوں ہو سکتا تھا کہ وہ پار کہتے جناب تم ہماری بیعت دلچی ہو, ہمارا تمہارا کیا تعلق, ہم ہمارے کمی کیوں آئے. اگر مجھے صاحب کو پار نہیں کیا ہوتا تم اور جنسا میں کس کی دعوت دیتے ہو. پھر بھی کفر سے محاذ میں ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لوں کہ یہ گنجائش خیر نکال نہیں جاتی تو ان کو مائل کرنے کے لیے کہا تو کسی طرح سے بات آئے. لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ آپ انسان ہیں اور انسان کو نبوت نہیں ملتی, انسانیت کے وہ قائل تھے, ایک کا کوئی ممکن نہیں تھا, پھر آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی سوچ سے وہ انسانیت کے منکر ہوتے, وہ نبیت کے منکر ہوتے, اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہنا پڑتا کہ میں تمہاری جنس ہوں. وہ جنس مانتے تھے, وہ بشر مانتے تھے, اس بات سے مکر تھے, اور رسالت کی نفی کے لیے انہوں نے بشریت ہی کو دلیل بنایا کہ تم بشر ہو لہٰذا نبی نہیں بن سکتے. تو میں صادق مخاطب سے مطالبہ کروں گا کہ قرآن کی سنت کی حوصلے میں قرآن کی نسل رفیع کے ساتھ اور حدیث میں جو کہ حدیث قرآن کے یعنی جواب میں آ کے یعنی حدیث متواتر ہو یا خبر مشہور ہو, آپ ایک ایسی روایت نکالنا ہے جس میں کفار نے کہا ہو کہ تم ہماری جنس سے نہیں ہو, پھر ہم تمہارے پر ایمان کیسے لائیں. جب یہ ضرورت نہیں تھی, یہ داعیہ نہیں تھا, یہ سوال نہیں تھا, تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تعلیم اختیار کرنے کی ضرورت تو پیش آئی. میں پھر دور الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک عبارت میں آپ کی دوسری پالیسی بیان کی گئی ہے جس کی نہ ضرورت تھی, نہ اس کا کوئی اعتراض تھا, نہ اس بات کی کوئی کسی قسم کی رائت تھی, اور پھر قرآن پر واضح الفاظ میں جب کہہ رہا تو نماز پڑھتا ہوں میں لوگوں اور 1400 برس کے مفسرین آپ کو بشر تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں, تو اس بات کی ضرورت قدم پیش نہیں ہو سکتی تھی. اور نہ ہے میرے واجب اسلام بزرگوں, میرا احساس بیان ہے, میں نے کہا کہ آپ مفتی صاحب کی عبارت سے یہ اٹھائیں کہ دوسری پالیسی ہے کہ نہیں, جو زبانیں مسلمانوں سے اور کفار سے, اور اگر یہ الفاظ میں نہیں ہے کہ کافروں سے یہ کہا گیا ہم مسلمانوں سے یوں کہا گیا, اگر یہ الفاظ ہیں تو زبانیں دو ہیں, کفار سے اور ہے, مسلمانوں سے اور ہے, اور یہی میرا دعویٰ ہے جس کو میرے قابل مخاطب توڑ نہیں سکے. نیز میرا دوسرا احساس تھا, اس کو میرے قابل مخاطب نے ہاتھ تک نہیں لگایا. وہ یہ تھا کہ کفار کو آپ کہتے ہیں میرے پاس خزانے نہیں ہیں, اور اس لیے آپ نے معاذ اللہ بڑھا نہیں ہے تاکہ چوری نہ کر لیں. خزانوں کے تحفظ کے لیے نبوت کی زبان سے جھوٹ بلوانا, میں سمجھتا ہوں اللہ زبان لرزتی ہے کہ نبی ہوگا جس نے اپنے وجود کو پیش کر دیا, پرسوں کی بارش ہوئی, آپ کے وجود سے لہو نکلا, پیر کی بازی آپ کے لہو سے رنگین ہو گئی, آپ کے نارائن لہو سے تر ہو گئے. سیدنا الملائکہ تشریف لاتے عرض کرتے آقا اجازت ہو پیر کی پہاڑیاں ملا کر کفار کو تحت محض نہ کر دیا جائے کہ اتنا تجربہ کہ آپ کے وجود سے لہو نکل رہا ہو. اما ایسا صدیقہ کائنات فرماتی ہے
नहीं। जब आप रैत से आदत कर चुके थे तो ऐसी पॉलिसी अख्तियार करना असमत नबुव्वत के खिलाफ है, तकद्दुस नबुव्वत के खिलाफ है, शराफत नबुव्वत के खिलाफ है। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि मुफ्तियान इमदाद खान साहब गुजराती ने अपनी इस किताब में इमाम उलंबिया की दो जुबानें बदलाई हैं, कुफार से और मुसलमानों से, और शिकारी की मिठास देकर वादे कर दिया है कि जैसे शिकारी शिकार को समझाने के लिए एक गलत जुबान इस्तेमाल करता है, वो बटेरा नहीं बनता बटेरा है। इस मिसाल को लाकर थोड़ा वादे कर दिया कि आका थे तो वो चीज नहीं, लेकिन उनको मार करने के लिए कहा बुरी हूँ। मेरा ये दावा था कि इसमें बिल्कुल आका की दो जुबानें, आका की दूसरी पॉलिसी और धोखाबाज आपको साबित किया गया है, वो एतराज नहीं उठा। और दूसरे एतराज को मेरे काबिल मुखातिब ने आज तक नहीं लगाया, वो अपनी बैन है और अपनी जगह इंशाअल्लाह अजीज वो कायम रहेगा। मेरे काबिल इस्लाम सामीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब आप ही की बात पर तवज्जो फरमाएं कि आज में दो जुबानें हैं या नहीं, मैं बिजनेस का काम किया करूंगा। वो इबारत में किताब लिख देता हूँ, वो देख लें कि हम मुसलमानों से ये कहा गया, कुफार से ये कहा गया, मुसलमानों से और कुफार से और, जब दो जुबानें हैं तो मेरा दावा साबित हो गया कि दूसरी पॉलिसी नबी की बयान दी गई जो अहमद से वो आदिल मुलाजिम ने सारा अपना दौर बयान बना दिया है कि कोई ऐसी हदीस साबित की जाए जिसकी आपने फरमाया हो कि मैं तुम्हारी तरह। अगर आपको यही शौक है कि मुझे अदलियत और मुदारियत से बात की जाए तो अलग मौजूद रखा जाए, पूरा 10 मिनट इसमें मुद्दत करना ये ठीक नहीं है। रहा ये मसला कि हमने ये दान किया था कि सरकार को शिकारी करार दिया गया है, ये भी एक काम है। इस जिम्मन में दो मिसालें आपकी किताबों में पेश कर और गालिबन आप ये तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, ये समझते नहीं है कि जवाब के अंदर मुकदमात मुसलमा के अंदर खत्म जो होते हैं वो पेश किए जाते हैं कि उधर मिसाल है शिकारी के साथ, इधर मिसाल है शेर के बच्चे के साथ, उधर गैर जुनून कहा गया है, इधर भी गैर जुनून कहा गया है। ऐसी सूरत में हाजी इमदादुल्लाह साहब के इरशाद के साथ और मुफ्ती साहब की पोजीशन को वाज़ेह कर रहे हैं कि यही बात तुम्हारे मुसलम बुजुर्ग ने इरशाद करवाई है और यही बात हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं। ऐसी सूरत में ये कहना कि उस सवाल का जवाब नहीं आया है, सवाल में एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो आमदन की गई है, इसके साधन होने की कोई वजह नहीं है। रहेगा ये मसला सरकार दोगली पॉलिसी साबित होती है, वहां कोई दखल नहीं है कि आपकी हाजिया आ रही है। ऐसी सूरत में मैं आपके सामने गोलीनुमा आना बाशरम की आयती पढ़ चुका हूँ और उसके मुकाबले हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ज कर चुका हूँ। और यही मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कहीं तक जान तो मेरे अल्लाह नूर किताब मुनीर है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, कहीं पर मैं आयम इल्लाह बिल्लही वसराजुल मुनीरा, उनको रोशन करने वाला करार दिया है, कहीं उनकी नुरानियत का इजहार है और कहीं को इन्नमा आना बाशर मुस्लिम इसका इजहार है। तो कुरान की दो आयतों से दो मंसूब साबित होते हैं, नुरानियत का भी बशरियत का भी। इसके दरमियान तस्दीक करते हुए मुफ्ती साहब ने ये करवाया है कि कुफार को अपनी तस्माइन करने के लिए कि मैं तुम्हारी जनते हूँ और लकत जात रसूलों में हम होते, इसीलिए कहा गया है कि आप नहीं जानते थे कि रसूल हमारी जनत से है, हमारे रसूल से है, हमारे कबीला से है, जानते थे। एक वाज़ेह बात के जिक्र का मकसद क्या था, क्योंकि जिन की तरफ माइल होती है जो सूरत मुमासिल हो उसकी तरफ मैदान पैदा होता है। तो लिहाजा जहाँ जिन या हकीकत के अंदर इतिहाद न हो, जाहिरी सूरत के अंदर इतिहाद हो, तो मिसल कहते उनको माइल करने के लिए तवज्जो किया जाता है। और आदिल मुनाजिर बटेरा नहीं है, बटेरा बन जाता है, ये अल्फाज इस्तेमाल कर गए हैं। तो ये हाशिया आराई को आप छोड़े, आप दलाइल की तरफ आए और दलाइल को साबित करें मुफ्ती साहब ने किसको बटेरा कहा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। ऐसी सूरत में यही मुफ्ती साहब आगे फरमा रहे हैं कि मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया गया है यूसुफ मुस्लिम, और यही बुखारी शरीफ के अल्फाज में पहले अर्ज कर रहा था कि अय्युकुम मुस्लिम इन्नी अदीबु युतिमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम में से कौन मेरी नामन है, मैं हर रात रब के पास होता हूँ, खिलाफा भी वो है, दिलासा भी वो है, लिहाजा मैं रोजे मुसलसल रख सकता हूँ क्योंकि मैं हर रात वहां रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं है। ऐसी सूरत में अपनी मकाम सामने आ गया कि बज़ाहिर यहाँ है और हकीकत वहाँ है, तो ताल्लुक और तजर्रुब की जो दो हैसियतें हैं उनको वाज़ेह कर दिया गया है। और हज़रत मौलाना ने अगर बजारी पड़ी होगी तो इनकी जाए उनके लंबे खलीफा की बातों में याद होगी और वहाँ ये वाज़ेह कर दिया गया है हाशिया बजारी के अंदर जो काबुल चांदकोटी ने लिखा और रूहुल मानी के अंदर कि खलीफा 3 गुरुओं के तहत आता है। मैं अपने बात को दूर नहीं ले जाना चाहता, आदिल मुनाजिर के
मुतालबा कर रहे हैं दूसरे इतराज का, और एक का जवाब देते देते बहुत कोशिश आ रही है मुझे। तो बहरहाल वहाँ उन्होंने तस्दीक की है कि लाबुद्दा मिन मुतवस्सितिन फी जिहति तजर्रुद व ताल्लुक लियस्तफीज़ मिन जिहतिन व युफीज़ उखरा। खलीफा क्यों मुकर्रर किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? ताकि मखलूक और खालिक के दरमियान कोई मुनासबत नहीं है, उनके दरमियान एक ऐसा रास्ता पैदा हो जाए, सूरतन बशर होता इधर मुनासबत हो, बाकी उसका रूहानी ईमानी होता उधर मुनासबत हो, वहां से फैज ले और इधर फैज दे। अगर ये दोहरी हैसियत होना दोगला पॉलिसी है तो आप अल्लामा आलूसी को फतवा लगाइए, आप आजम चालकोटी पे फतवा लगाइए, आप दूसरे मुफस्सिरीन हज़रात हैं उन पे फतवा लगाइए। इन्होंने कहा है कि लाबुद्दा मिन मुनासिबतिन लिल-इफादति वल-इस्तिफादति, फैज लेने और देने के लिए मुनासिब का होना जरूरी है। इसके साथ मैं आपसे यह करूँ कि जरूरत के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जुमा नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर जाबिर और जालिम बादशाह के सामने जब ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का मामला आया तो उसने पूछा आपसे ये कौन है? बाप नाते मेरी बहन है। हालांकि बहन नहीं थी, बीवी थी आपकी, लेकिन वहाँ दूसरे मामले के लिहाज से बहन कह दिया है, अपनी बीवी को आगे के लिहाज करवाया है, उनके उसी के इस्लाम के लिहाज से मेरी बहन है, लेकिन रिश्ते के लिहाज से बहन है। एक जरूरत है, मसलियत है, उसके तहत ऐसा वक्त बोला गया है जिसके अंदर दोनों रिश्ते मौजूद हैं। अगर ये दोगली पॉलिसी है तो यहाँ भी हो सकती है, वो नहीं यहाँ भी हो। इसी तरह सारी इबादत करते थे सूरज की, चांद की और सितारों की, उनको अपनी गलती पर तंगी करने के लिए मुजाहिर ऐसी कलाम की है जिसमें कोई इस्तेफाम वगैरह नहीं है। सितारे को देखा तो मैं हजार रबी वोटून के अंदर मैं पसंद नहीं करता, चांद को देखा बड़ा सा तो मैं हजार रबी वोटून के अंदर मैं ढूंढने वालों को पसंद नहीं करता, सूरज को चमकते हुए देखा तो मैं हजार रबी जब वोटून के अंदर लाभ बिल्कुल आखिरी मैं ढूंढने वालों को पसंद नहीं करता, जब मैं रबी का दुर्वजी होता हूँ। ऐसी सूरत में लफ्ज ये है हजार रबी वो समझते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको रब कह रहे हैं। अगर इब्राहिम की इस्तिफाम था और आप उनकी गलती पर तंगी करने के लिए जो करवा रहे थे, ये ढूंढने वाले हैं, अपने वजूद पे इनको इख्तियार नहीं है। ऐसी सूरत में इनकी इबादत जो है उसको अदा की जा सकती है। तो लिहाजा ये कोई पॉलिसी नहीं होती। राज जानने वालों को और बात बताई जाती है, जो राज से वाकिफ नहीं होते हैं उनको और बात बताई जाती है। और के अंदर तो खास समझने से जब इंसानों की सूरत में वो रसूल नहीं हो सकता, आपने नतीजा हासिल किया जिस सूरत इंसानी में वो रसूल भी हो सकता है। ये तुम्हारा नतीजा और सीधा गलत है। और आज आपने मानवी की किताबों में पढ़ा नहीं है, जो आप भी करवा रहे हैं, इस मकान पर कुफार इस नजरिया पर करना मौजूद है। मैं सिर्फ पैसा नहीं थे और आपको नहीं था, उनकी गलती पर तंगी करना मौजूद है कि मुताबिक समझ लेना ये ठीक नहीं है। मैं प्रकृति हूँ और रसूल भी हूँ, और जाहिर बात है कि जब तक रसूल की बात की हैसियत से और मुख्तलिफ नहीं होगा, ऐसी सूरत में रसूल नहीं हो सकता। अगर आप बताए का शौक है सुनना चाहते हैं, अगर मौजूद रखे तो दूसरा मैं ये वजाहत पेश कर दूंगा। दोगली पॉलिसी वाला मामला खत्म हुआ। शिकारी की इंसान में लौटा और हाथ के साथ वादे कर चुका हूँ, शेर का बच्चा कहना उसके साथ वादे कर चुका हूँ। दूसरी आयत करीमा जो आपने पेश करवाई थी, मुफ्ती साहब मुस्लिम फरमाते हैं इसके तहत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि सरकार ने कुफार को खिताब करते हुए फरमा दिया कि मेरे पास बनाने नहीं है, तुम चोर हो चोरी कर लोगे। ऐसी सूरत में फाजिल मुनाजिर को अच्छा ये नाफिक हो गया है कि सरकार को आलिम भी से मुख्तार भी से उनसे ये खजाना चोरी कर सकता था। तो पहली बात यह है कि आप तुम्हारा इसमें झूठ का कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हें कहता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ किसी के घर में माल पड़ा हो, जितना ही माल इख्तियार हो, लोगों को कहता नहीं है कि आप मारो मेरे घर से चोरी करके देखो तो सही। मैं तुम्हें कहता नहीं हूँ। और ये खजाइन की बात अपने उनके साथ बयान की जाएगी और आपको याद नहीं होगा मेरी ये अपने जो अभाव थे मुस्लिम थे उनको अपने राज बयान किए हैं।
जाहिर है अजनबी फिर उनकी बातें जो है वो नहीं बयान की गई। लेकिन ये बात कि मुखातब की बहुत कौन है, पाक यकीन है या गैर है, इस सिलसिला में वल्लज़ीना कज़रबू बिआयातिना युज़्हिबुल अज़ाब बिमा कानू यफ़्तरून, ये माक़बल मौजूद है ऐसी सूरत में क्या के साथ हमारा वाज़ेह हो जाता है कि कलाम उन मुखात के साथ है कज़रबू बिआयातिना, जो आयात की तस्दीक करने वाले थे और वही आपसे ये मुतालबे किया करते थे कि आप हमें पहाड़ सोने से बना रहे हैं, आप पहाड़ों को हटा दें, ये करें वो करें। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था। अब इस दिन रह गई ये बात क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला, उसका जवाब आ चुका है कि ये इजहार नहीं किया गया उनके सामने, लाकूल कहा गया है, कहता नहीं। दूसरी सूरत ये थी कि आप हिफाजत कर सकते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत कर सकता है आसमानों की, लेकिन बावजूद इसके बाहरात करने की काबिल है, अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर है, उसने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं और उनके लिए रजूम है जो आने का काम देते हैं, असलहा का काम देते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो किस निमन में उनका जो हवाला दिया गया है वो क्या मानी करता है, वो बहुत से लगा इसका जवाब हमारे सवाल के मुताबिक नहीं है। हमारा एक रात होता तो ये रात उन्होंने हजूर को शिकारी के बाद में तस्वीर दी है और उसमें हजूर की बशरियत का कोई इनकार नहीं कर रहे थे, वो बशरियत का इकरार करते और यहाँ पर बशरियत का इकरार होने के साथ ये मिसाल देकर उन्हें तौहीन की है। न तो बशरियत का मतलब है बशरियत का कोई इकरार कर